Hello everyone, you are watching the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. This is me, Advocate Varun Pradhan, presenting the daily news review for today. So guys, before we proceed, why don't you hit the like button and subscribe to the channel of Rouse Academy if you haven't yet. Well guys, in our previous video, I asked you a few questions which were published in the Hindu newspaper. Let us see what are their solution. Question number 1 was, this is the oldest continuously published newspaper in India, and the right answer is Bombay Samachar. Recently, a stamp was released to commemorate 200 years of the Bombay Samachar newspaper. Fine. Another question was, the act was said to be enacted by British mainly against the newspaper. Name the act and the newspaper. So the act was named as Vernacular Press Act, which was enacted during the tenure of Lord Lytton, and the newspaper against which it was allegedly enacted was Amrit Bazar Patrika, which was started by Shishir Kumar Ghosh. Alright, next question was, this Tamil language newspaper was founded by an Indian journalist who also founded the leading English newspaper. Name the Tamil newspaper. So the right answer is Swadesh Mitran. The Tamil newspaper was Swadesh Mitran, and its founder was Mr. Subramaniam Iyer, who was also founder of the Hindu newspaper. Alright, another question was, this weekly founded by this individual survived all these years on subscription alone. Name the magazine and its founder. So the magazine or newspaper was named the Lankesh Patrike, and its founder was P. Lankesh, whose daughter was Gauri Lankesh, who was recently shot dead outside of her house. Alright, next question was, this is Government of India's statutory body of the Ministry of IB. Name the body. The body is Registrar of Newspapers of India. And another question was a visual question in which there was an image, and the question goes like, identify this person who was part of a managing committee of the English Daily, and the right answer is Mr. Madan Mohan Malviya. Madan Mohan Malviya was part of the managing committee of the Hindustan Times. ठीक है, तो इनका आप एक नोट बना लीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की न्यूज में क्या खास है. तो एक न्यूज आ रही है अगेन बाली से G20 समिट को लेकर. मैंने कल के लेक्चर में और परसों के वीडियो में भी G20 को कवर किया था. अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग G20 के बारे में हो जाए. हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और उनको ऊपर टॉप पर पिन अप भी कर दिया है, तो आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं. क्या न्यूज़ है ये यूं समझ लें कि पिछले 2 दिन की न्यूज़ का ही एक फॉलो अप है, जिसमें G20 देशों ने यूनानिमसली एक बात कही है, दैट वॉर इज कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग. एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया जिसमें कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनसे ग्लोबल इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को थ्रेट है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है. ये सारे चैलेंजेस हैं. मैंने कल के लेक्चर में भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वायलेंस को छोड़कर डायलॉग्स के थ्रू अपने डिस्प्यूट देशों को सुलझाने चाहिए. ठीक है, तो ये एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया है. ठीक है, और तो ज़्यादा कुछ खास इस न्यूज़ में नहीं है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, 2023 में इंडिया G20 की समिट को होस्ट करने वाला है, इसलिए इस साल तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा ही, नेक्स्ट ईयर भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, तो याद रखिएगा कि सारी कंट्रीज ने ये कहा है कि वॉर से
बहुत नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ लोग परेशान हो रहे हैं बल्कि दूसरे देश भी परेशान हो रही हैं। ऑलराइट, सो गाइज, इफ यू वांट टू enhance your preparation for UPSC civil service exam or MPPSC state service exam, you can join our batches at Rouse Academy for competitive exam, MP Nagar zone 2 opposite railway track. Alright, here we will give you a very relevant preparation which will be done by qualified and experienced faculty from reputed institutions of this country. So give wings to your preparation and join Rouse Academy for competitive exams. Another news is from COP27. COP27 summit was also covered in day before yesterday's lecture. Alright, so in COP27 there was an idea floated by European Union which is called carbon border tax. Let us try to understand what do we mean by carbon border tax. So carbon border tax basically means imposing a tax on certain goods. It's a tax on certain goods which have high कार्बन एमिशंस, ठीक है, हाई कार्बन एमिशंस वाले गुड्स पर एक टैक्स लगाना चाहिए। ये और आइडिया फ्लोट करा किसने? यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, ये आइडिया फ्लोट किया यूरोपियन यूनियन ने, और इंडिया और 3 दूसरी कंट्रीज ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया, या यूं कहें इसको अपोज किया। कौन कौन लोग हैं वो? तो देखिए, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो हाईली डिपेंडेंट होती हैं किस पर? कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या फिर सीमेंट इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें कार्बन एमिशन हाई होना ऑब्वियस है। और कुछ एक देश ऐसे हैं जिनको बेसिक ग्रुप कहा जाता है। बेसिक ग्रुप में कौन कौन आता है? ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, ठीक है, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, इनको कहा जाता है बेसिक ग्रुप। तो ये बेसिक ग्रुप हाईली डिपेंडेंट है कोल पर, ठीक है, कोल पर हाईली डिपेंडेंट ये देश हैं, दैट इज फॉसिल एनर्जी पर डिपेंडेंट है। यदि ये कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसा कोई सिस्टम आ जाएगा तो हमें बहुत हैवीली टैक्स चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्रीलिम के लिए एक प्यारा सा पॉइंट देखते हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि विश्वनाथ स्वामी टेम्पल के बाहर बहुत सारे चैरियट्स लाइंड अप हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे आर्ट एंड कल्चर के अंदर प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ स्वामी टेम्पल में होने वाले चैरियट फेस्टिवल का नाम क्या है? तो उसका नाम है रथ समागम, दैट मीन्स कन्वर्जेंस ऑफ चैरियट्स। ये नाम आप याद रखिएगा, बड़ी सुंदर सी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूज़ देखते हैं जिसमें इंडिया ने स्पीड बोट्स को डिप्लॉय किया है पेंगोंग सो पेट्रोलिंग में, ठीक है। इंडिया ने कुछ नए डॉक्स और स्पीड बोट्स को डिप्लॉय किया है पेंगोंग सो में, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में सिचुएटेड है। पेंगोंग सो लेक इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न लद्दाख, जहां पर लगातार चाइना की वजह से टेंशन बढ़ता जा रहा है। चाइनीज प्रेजेंस उस एरिया में बढ़ रही है, जिसके लिए इंडिया को लगातार पेट्रोलिंग एक्सेट्रा करना पड़ता है, ठीक है। तो और तो इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन पेंगोंग सो
जो लेक है उसकी लोकेशन एक्सेट्रा के बारे में आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके मैप एक्सेट्रा को आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको पेंगोंग सो लेक की इमेज दिख पा रही होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और एक और शानदार न्यूज़ देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है मॉस्को टॉक्स में। मॉस्को टॉक्स ऑब्वियसली रशिया में हो रहे होंगे, जिसमें एक पर्टिकुलर मुद्दे पर बात हो रही थी। क्या था? इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान बनाने को लेकर। तो एक क्वेश्चन तो प्रिलिमिनरी के लिए ये बन सकता है कि मॉस्को टॉक्स इज रिलेटेड टू व्हाट? सो इट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। ठीक है, और क्या कुछ खास है? तो इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया? रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड इंडिया। यानी कि अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और इस मीटिंग में बहुत सारा अफगानिस्तान इशू के बारे में चर्चा की गई और ये कहा गया कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान को दिया जाना चाहिए। हम सभी को जॉइंटली एफर्ट करना चाहिए कि अफगानिस्तान में स्थितियां थोड़ी सी सुधरें, थोड़ी स्टेबल बने। ठीक है, इसको लेकर ये पूरी मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूज़ देखते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 32 फॉर्मर वेमेन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स को पेंशन अलाउ की है। ठीक है, 32 महिला अधिकारी भारतीय वायुसेना की, उनको पेंशन अलाउ की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, क्या था पूरा विवाद, क्या था मैटर, आइए समझते हैं। देखिए, इनिशियली भारतीय सेना में दो तरह की सर्विसेज होती हैं। एक होती थी SSC, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, एंड अनदर वाज परमानेंट कमीशन। ठीक है, ये दो तरह की कमीशन होती थी। क्या अंतर है दोनों में? शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो 10 इयर्स के लिए होती है और रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, जबकि परमानेंट कमीशन जो होती है वो थ्रू आउट योर रिटायरमेंट चलती है। आप रिटायरमेंट तक उसमें रह सकते हो, 60 इयर्स दैट इज, है ना, और आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हो किसमें? परमानेंट कमीशन में। ठीक है, प्रॉब्लम कहां आई? महिलाओं को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन में अलाउ किया जाता था। ठीक है, हालांकि महिला और पुरुष दोनों शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू सेनाओं में जा सकते थे, है ना, लेकिन महिलाओं को परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट नहीं किया जाता था यदि महिलाएं किससे? शॉर्ट सर्विस कमीशन से जाती थी। दैट सिंपली मीन्स कि 10 साल के बाद कंपल्सरीली आपको रिटायर होना पड़ेगा यदि आप एक महिला हैं तो, और आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगी। दूसरी बात यह कि आपको परमानेंट कमीशन में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है, जबकि पुरुषों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से आइए लेकिन आपकी परमानेंट कमीशनिंग हो सकेगी। तो बबीता पुनिया इस मामले को कोर्ट में लेकर गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये तो आर्टिकल 14 का वायोलेशन है, महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन में एंट्री होनी चाहिए। दे शैल बी अलाउड टू एंटर इनटू फोर्सेस थ्रू परमानेंट कमीशन।
Also, the women who are coming by short service commission shall be allowed to transform into permanent commission, and they shall also be eligible for pension etc. ऑलराइट, ये बात कही बबीता पुनिया वाले केस में, ठीक है। अब इस पूरे डेवलपमेंट को आप याद रखिए और ये आर्टिकल देखिए। बेसिकली इन 32 महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि कोर्ट इस नतीजे तक आ पाया, ठीक है, कोर्ट इस नतीजे तक आ पाया। लेकिन जब तक ये निर्णय आया तब तक ये 32 अधिकारी रिटायर हो चुके थे, दैट इज इनकी शॉर्ट सर्विस समाप्त हो गई थी, यानी कि अब ये पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो फिर ये 32 अधिकारी कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गई और वहां सुप्रीम कोर्ट ने एक इक्विटेबल, जस्ट एंड फेयर रवैया अपनाते हुए इन 32 अधिकारियों को पेंशन अलाउ कर दी। ऑलराइट, ये था ये वाला आर्टिकल, ठीक है। सो नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर current oriented one liners. Let's see what are those one liner which may be important for your preliminary exam. Number 1, World Philosophy Day is commemorated on 3rd Thursday of November every year. This year it will fall on November 17. तो आज विश्व दर्शन दिवस है, वर्ल्ड फिलोसफी डे है, क्योंकि वर्ल्ड फिलोसफी डे हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और नवंबर 17 इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे with aim of emphasizing the value of education for all the students. Next one liner is J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha ji has announced 10% reservation for children of martyred army personnel and poor families under the Parvaz scheme. This scheme aims to fully assist students in preparation of UPSC, NEET, JEE and J&K एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो परवाज स्कीम किससे रिलेटेड है? वो स्टूडेंट्स को असिस्ट करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इसमें 10% आरक्षण दिया गया है शहीदों के बच्चों के लिए और गरीब परिवार से आने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। Next is Bengaluru, Chennai and Ahmedabad have ranked in the 20 most crypto stressed cities in the world. ये 20 सबसे ज्यादा क्रिप्टो स्ट्रेस सिटीज में से 3 भारतीय हैं, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद। And last is India climbed 2 spots to rank 8th out of 63 in Climate Change Performance Index, that is CCPI 2023. India's improvement increased due to its low emission and increased use of renewable energy. Alright, तो हमने 2 स्पॉट की छलांग लगाकर 8th पर आ गए, प्रीवियसली हम 10th पर थे। So this is it for today. Now it's the time for quiz. तो यदि ये न्यूज आपने ध्यान से देखी है तो ये क्विज आपको आंसर देना बहुत इजी होगा। So question number 1 is which day is observed on 17th November? A. World Philosophy Day, B. International Students Day, C. both, D. none of the above. And second question is Pangong Lake is situated at A. Ladakh, B. Leh, C. Uttarakhand, D. Himachal Pradesh. So guys, if you know the answer, please let us know in the comment box, and if you don't know the answer, please stay tuned with us for the answer. Alright, so I hope you guys learned something new. This is it from our side. Please like this video, share it with your fellow aspirants, subscribe to our YouTube channel if you haven't yet, and also follow us on various social media platforms so that you never miss any update. This is me, Varun Pradhan, signing off. See you tomorrow.